जय सिया राम। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स हो गया H2O, ठीक है, और कार्बन हो गया C। ओके, जनरल फार्मूला CxH2O होल वाई। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 6 अगर लेते हैं तो फिर एग्जाम्पल C6H2O होल 6 मतलब C6H12O6। ओके, एक्सेप्शन C2H2O होल 2, C2H4O2 मतलब CH3COH। ये एसिटिक एसिड है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, Ramnose C6H12O5. Ramnose C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this definition. तो फिर इसका न्यू डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे पहला एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें होना चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें होना चाहिए। ओके, the carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone or the compounds which produce such units on hydrolysis. The carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone. The carbohydrate may be defined as the carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone or the compound which produces such units on hydrolysis. अच्छा, some of the carbohydrates which are sweet in taste are also called sugar. The most common sugar used in our homes is named as sucrose, whereas the sugar present in milk is known as lactose. The most common sugar used in our home is named as sucrose, whereas the sugar present in milk is known as lactose. Okay, some of the carbohydrates are sweet in taste are called sugars. Okay, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, एडिशन ऑफ वाटर के मोनोसैकेराइड्स, oligosaccharides or polysaccharides. Monosaccharides does not hydrolyze further. Monosaccharides does not hydrolyze further. Example: glucose, fructose, galactose, etc. Monosaccharide does not hydrolyze further. Monosaccharides does not hydrolyze further. Glucose, fructose, galactose, glucose, fructose, galactose, glucose, fructose, galactose, etc. Okay, oligosaccharides produces 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis. Oligosaccharide produces 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis. ठीक है, डाइसैकेराइड मतलब वो दो यूनिट दे रहा। एग्जाम्पल: सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एटसेट्रा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एटसेट्रा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एटसेट्रा। Example: sucrose, maltose, lactose, etc. Sucrose, maltose, lactose, etc. Sucrose, maltose, lactose, etc. और ट्राइसेकेराइड एक ही एग्जाम्पल है ट्राइसेकेराइड का, रेफिनोज। ओके, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों हो गया ऑलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स विच yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharide. Some common examples are starch, cellulose, glycogen, gum, etc. Polysaccharide are not sweet in taste, hence they are also called non-sugar. Carbohydrates which yield large number of carbohydrates which yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis carbohydrate which yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called polysaccharide.
carbohydrate which yields a large number of monosaccharide unit. Carbohydrate which yield a large number of monosaccharide unit. Carbohydrate which yield a large number of monosaccharide unit. Carbohydrate which yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called polysaccharide. Some common examples are starch, cellulose, glycogen, gum, etc. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are called non-sugar. Okay. Classification. Second, reducing and non-reducing sugar. Reducing reduces tolerance reagent, failing reagent, Benedict reagent. Reduces tolerance reagent, failing reagent, Benedict reagent. Example पहला monosaccharide like glucose, fructose, galactose etc. ठीक है, monosaccharide like glucose, fructose, galactose etc. और disaccharide like maltose, lactose etc. ओके. सेकेंड है नॉन रिड्यूसिंग, मतलब इस मोनोसैकेराइड में तो तीनों आ गया और फिर डाइसैकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज आया. ठीक है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग में आ जाता है. नॉन रिड्यूसिंग डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग एंड ऑल्सो बेनेडिक्ट रिएजेंट. ठीक है, एग्जाम्पल सुक्रोज. ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस NH4OH और Ag2O और Ag प्लस और AgNH3 होल 2, यहाँ पे होल OH. ठीक है, तो फिर यहाँ पे Ag प्लस से इसका रिडक्शन होके Ag0 बन गया. ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर मिरर देता है. और कार्बोहाइड्रेट जो है एल्डिहाइड और कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बन जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू बेसिक मीडियम. यहाँ पे CO माइनस बना है, सॉल्ट बना है. बिल्कुल. Ag प्लस का रिडक्शन हो गया, Ag प्लस से Ag0 बन गया. ओके, और फिर कार्बोहाइड्रेट में जो एल्डिहाइड और कीटोन है इसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसका रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग A, फेलिंग B. एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल. ये फेलिंग A, फेलिंग B है. ठीक है, फेलिंग A था, इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल. फिर उसके बाद फेलिंग B सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट रोचेल्स सॉल्ट. ठीक है, CONaCHOH ओके. तो यहाँ पे Cu2 प्लस का इसका रिडक्शन होकर बन गया Cu2O. यहाँ पे +2 से +1 में हो गया ये रिडक्शन, रेडिश ब्राउन PPT बना. और फिर कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये बना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CO माइनस. कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का और ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CO माइनस. बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट मिक्सचर ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट मिक्सचर ऑफ एक्वस CuSO4 एंड सोडियम सिट्रेट. Benedict reagent mixture of aqueous copper sulfate and sodium citrate, copper sulfate and sodium citrate. Aqueous CuSO4, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O क्या ब्लू विट्रियोल. ठीक है, यहाँ पे Cu2 प्लस का रिडक्शन हो गया, Cu2 प्लस का यहाँ पे रिडक्शन हो गया, बना Cu2O. Cu2 प्लस का रिडक्शन हुआ और इससे बना Cu2O. Cu2 प्लस यहाँ पर रिडक्शन, Cu2 प्लस यहाँ पर रिडक्शन हो गया, क्या बना Cu2O. Cu2 प्लस यहाँ पर रिडक्शन के बाद यहाँ पे क्या बना Cu2O. Cu2 प्लस रिडक्शन के बाद क्या बना Cu2O, Cu2O +2 से +1. ठीक है, आप लोग रेडिश ब्राउन PPT. कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन और ये बना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CO माइनस और CH2CONA. फिर यहाँ पे COH CONA CH2CONA. Classification, classification based on number of carbon atoms, number of carbon, aldehyde, ketone.
नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो फिर यहाँ पे एल्डिहाइड में एल्डो ट्रायोज कीटो ट्रायोज, अगर 4 है तो फिर एल्डो टेट्रोज कीटो टेट्रोज, ठीक है। 5 है एल्डो पेंटोज कीटो पेंटोज, 6 है एल्डो हेक्सोज कीटो हेक्सोज। Method of preparation of glucose from sucrose sucrose 12 H22 O11, ठीक है। यहाँ पे S3O प्लस डाले, इन्वर्टेज डाले S3O प्लस, तो ये टूटा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। सुक्रोज टूटा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज C6H12O6 ये एल्डिहाइड, और यहाँ पे फ्रक्टोज C6H12O6 ये हो गया कीटोन का, ठीक है। ग्लूकोज डाइसैकेराइड ये यहाँ पे डेक्स्ट्रो है D प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो बना, ग्लूकोज में यहाँ पे एल्डिहाइड है ये मोनोसैकेराइड, और ये डेक्स्ट्रो है D प्लस, और यहाँ पे फ्रक्टोज जो है ये लीवो है L है माइनस, और फ्रक्टोज में यहाँ पे कीटो ग्रुप है, ओके। नेट रोटेशन जब देखते हैं इसका तो फिर ये आता है लीवो L माइनस, ओके। इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन भी से कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज से क्या बना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ओके। फ्रॉम स्टार्च C6H12O5 होल N, यहाँ पे H3O प्लस डाले तो फिर यहाँ पे n नंबर ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज बना, n नंबर ऑफ C6H12O6 यहाँ पे ग्लूकोज बना, ठीक है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। पहला हो गया ग्लूकोज इज ऑल्सो नॉन एज डेक्सट्रोज प्लस, प्रॉपर्टीज ग्लूकोज इज नॉन एज डेक्सट्रोज प्लस, ठीक है। स्ट्रक्चर, और यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज का 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हाँ पहले यहाँ पे राइट में लिखा था, नीचे में OH राइट लेफ्ट राइट। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इक्वल्स टू 4। ग्लूकोज इज ऑल्सो नॉन एज डेक्सट्रोज, हाँ ये डेक्सट्रो होता है प्लस। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन विथ HCN, C डबल बॉन्ड O है और इधर H, ठीक है। तो ये टूटा माइनस प्लस SCN, H प्लस CN माइनस O के साथ H चला गया और C के पास CN, ठीक है। ये बन गया साइनोहाइड्रीन बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ओके। रिएक्शन विथ HI और रेड फॉस्फोरस, रिएक्शन विथ HI और रेड फॉस्फोरस, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा H लगा, ठीक है। HI और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये बन गया यहाँ पे CH3 CH2 मतलब N हेक्सेन बन गया, सब कुछ वो सब हट गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI और रेड फॉस्फोरस ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, उसको तोड़ा HH, ठीक है। फिर यहाँ पे H सब कुछ तोड़ते हैं, ये बन गया N हेक्सेन, ठीक है। चाहे अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, मतलब चाहे कीटोन हो चाहे एसिड हो, कुछ भी हो, ये सबको तोड़ देता और N हेक्सेन बन गया सिंपल, ठीक है। रिएक्शन विथ NH2OH, 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 C डबल बॉन्ड O H NH2OH, तो यहाँ से H2O निकला और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया ग्लूकोज ऑक्सीम। C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे NH2OH, यहाँ पे H2O निकल गया, ठीक है। CH डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH, तो यहाँ से ये हो गया, हट गया H2, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन था, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन था और ये बन गया ऑक्सीम, हाँ N के साथ ही डबल बॉन्ड ना, C डबल बॉन्ड N, तो ये बन गया ऑक्सीम, ग्लूकोज ऑक्सीम बनता है ये।
Reaction with acetic anhydride. Reaction with acetic anhydride. AC2O CS3 C double bond O C double bond O CS3. ये असाइल ग्रुप है C double bond O CS3. ठीक है, ये असाइल ग्रुप है. ओके, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड CHO, यहाँ पे C, इधर HOH, यहाँ पे COH HOH CS2OH. ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. यहाँ पे देखो CHO HOAC HOAC. मतलब ये एक्सेस में था तो यहाँ पे 5 मोल यूज़ हुआ. 1 2 3 4 5 अल्कोहल. ये स्टेरिफिकेशन है. हाँ, तो यहाँ से CH3COH लेना तो फिर अल्कोहल से H आया और यहाँ से इतना पार्ट. फिर यहाँ पे ROCOCH3 बन गया, ये एस्टर. अच्छा, यहाँ पे एस्टर बन जाता है. हाँ, और एसिड रिलीज हो गया तो यहाँ पे एस्टर बना. 5 मोल यूज़ हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड का. ओके, अब देखते हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर. रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर Br2H2O. रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर Br2H2O. Mild oxidizing agent oxidizes. Mild oxidizing agent oxidizes. हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Br2 प्लस H2O. Br2 प्लस H2O ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एल्कोहल को. हाँ, क्योंकि माइल्ड है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया. एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया. हाँ, ये अल्कोहल को नहीं छोड़ता, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया. हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Br2H2O Br2H2O Br2H2O. ओके, देखो CHO CHOH OHH HOH HOH CH2OH. ओके, यहाँ पे COH एल्डिहाइड था यहाँ पे, और इसका इधर बन गया COH HOH CH2OH. ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड. रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. 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 जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये अल्कोहल और एल्डिहाइड ये दोनों को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दिया, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे अल्कोहल हो. एल्डिहाइड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. वन डिग्री अल्कोहल. एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. 1 डिग्री अल्कोहल से RCH2OH से भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. हो गया सैक्रिक और ग्लूकैरिक एसिड. सैक्रिक और ग्लूकैरिक एसिड. सैक्रिक और ग्लूकैरिक एसिड. सैक्रिक और ग्लूकैरिक एसिड. यहाँ पे रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. सैक्रिक और ग्लूकैरिक एसिड. सैक्रिक और ग्लूकैरिक एसिड. सैक्रिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड. सैक्रिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड. और यहाँ पे था ग्लूकोनिक और एल्डोनिक एसिड. ग्लूकोनिक और एल्डोनिक एसिड. ग्लूकोनिक और एल्डोनिक एसिड. Br2H2O 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 Br2H2O. सो जो यहाँ पे बना था सिर्फ और सिर्फ ऊपर में CHO से COH बना था. ठीक है, तो ये क्या ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड. Br2 प्लस H2O.
ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऊपर में जब चेंज हुआ है और ऊपर नीचे दोनों जगह यहाँ पे एसिड आ गया तो हो गया ग्लूकैरिक एसिड और सैक्रिक एसिड। ऐसे भी ए वर्ड लगता था ना जब एक से ज़्यादा होता था, तो हाँ, तो यहाँ पे भी वही याद, वैसे ही याद कर लो, सैक्रिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड, और वहाँ पे है ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड चेंज हुआ एसिड में तो फिर एल्डोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ पे सैक्रिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड, ओके। चाहे यहाँ पे देखो ग्लूकोज में अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालें, अगर ग्लूकोज में सीधा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालें तो यहाँ पे बन गया ग्लूकैरिक एसिड। अगर ग्लूकोनिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो फिर यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकैरिक एसिड। हाँ ठीक है, अब देखते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। CHO यहाँ पे HOH OHH HOH HOH CH2OH, ठीक है। PHNH NH2 PHNH NH2 एक मोल यूज़ हुआ है यहाँ पे किसका, फिनाइल हाइड्रोजीन का, NH2 NHPH फिनाइल हाइड्रोजीन का यहाँ पे एक मोल यूज़ हुआ, ठीक है। CH डबल बॉन्ड NNHPH, H2 यहाँ से निकला, H2 यहाँ से निकल गया, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHPH, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया, एक मोल यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, ठीक है। सेकेंड मोल जब आता है तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये टूटा H से और वहाँ पे एक O चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे O गया तो ये यहाँ पे कीटोन बन चुका है, हाँ, क्योंकि पानी निकल जाएगा, एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, जेम डायल, तो फिर यहाँ पे पानी निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NNHPH, ठीक है। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ से H2O निकला, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHPH। अब तीसरा मोल आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड तो ये मतलब सेकंड वाला जो मोल था ये यहाँ पे रिडॉक्स से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तीसरा मोल जब आता है तो यहाँ से पानी निकला और फिर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बन गया C डबल बॉन्ड NNHPH, ठीक है। तब बन गया ये ओसाजोन और ग्लूकोसाजोन। ये फिनाइल हाइड्रोजन से ये बनता है ओसाजोन और ग्लूकोसाजोन, ओके। अब देखते हैं पर आयोडिक एसिड HiO4, पर आयोडिक एसिड HiO4, अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये OH यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, इधर C डबल बॉन्ड O OH, ओके। और फिर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, तो यहाँ से H2 निकल गया तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O बन गया कीटोन, ठीक है। और विस्नल डायोल भी है अगर तो फिर यहाँ पे OH ये वाला बॉन्ड टूटा OH से, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड कीटोन बन गया। विस्नल डायोल हो या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल या फिर अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे अल्फा हाइड्रोक्सी हो या फिर विस्नल डायोल, ओके। HiO4 सब पैक्ट करता है। तो देखते हैं रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड HiO4, यहाँ पे CHO है, ठीक है, OHH CH2OH, यहाँ पे HiO4 आता है। और फिर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड 5HCOH, फॉर्मिक एसिड 5HCOH प्लस HCHO, यहाँ CHO HOH OHH, यहाँ CHO HOH OHH HOH CH2OH, ठीक है। यहाँ पे देखो HiO4 फॉर्मिक एसिड 5HCOH प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO, यहाँ पे OHH से सब कुछ टूट गया, ठीक है। तो अब ये बना क्या, पर आयोडिक एसिड, यहाँ पे सारा बॉन्ड टूट जाता है OH से, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज था ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड O
एच मतलब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बना HCHO, एक फॉर्मल्डिहाइड बना। हाँ, और बाकी तो सब यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड 1 2 3 4 5 फॉर्मिक एसिड बना और एक फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये ग्लूकोज से। ठीक है, अब देखते हैं फ्रक्टोज अगर लेंगे तो फिर यहाँ पे 1 2 3, देखो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड है, OH आया, H2O यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड हो, एक CO2 निकला और एक H2O निकला। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर OH जब आएगा देन यहाँ पे HCHO, HCHO और फिर यहाँ पे भी OH, 1 2 3, ये तीनों तो बन जाएगा HCOH, एसिड बन जाएगा, 3 एसिड बन जाएगा। और फिर यहाँ पे HCHO 2 को बन जाएगा HCHO, 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, एक CO2 एक H2 और फिर 3 HCOH। ठीक है, अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज LAH SPH और NaHG प्लस ROH और H2 प्लस कैटलिस्ट। मेनली जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है NaHG प्लस ROH, तो ये एसिड इससे Na से रिएक्ट किया, H2 गैस निकला, ऐसे याद रख सकते हैं। तो H2 इसको तोड़ देता है, C डबल बॉन्ड को HS से तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे CH2OH बन गया, CH2OH ऊपर में। तो इसे क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल, इसे कहते हैं सॉर्बिटॉल। और फिर रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज देखते हैं, तो यहाँ पे NaHG और ROH है। ठीक है, यहाँ पे H तो यहाँ पे CHOH सेकेंड कार्बन पे। तो और ये क्या है, ये कायरल है, तो ये 2 तरह का बनाएगा। एपीमर्स एट C2 HOH, यहाँ पे OHH। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, ये 2 तरह का बना, सॉर्बिटॉल और यह हो गया मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, मैनिटॉल। NaHG प्लस ROH, वहाँ पे सिर्फ सॉर्बिटॉल बना था और यहाँ पे सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों बना। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रक्टोज ग्लूकोज और मैनोज ऑल दिस आर इंटरकन्वर्टेबल। हाँ, क्योंकि टोटोमर एग्जिस्ट करता ना, इसलिए फ्रक्टोज ग्लूकोज और मैनोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ब्रोमीन वाटर, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है ओनली एल्डिहाइड को ये सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है, तो फिर ग्लूकोज में एल्डिहाइड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन ये फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ओनली डिस्टिंग्विश बाय ब्रोमीन वाटर, नॉट बाय टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। ओके, glucose fructose and mannose give same osazone because in osazone formation takes place at first 2 carbon atom। बिल्कुल, osazone is stable by intermolecular hydrogen bonding। glucose or fructose is converted to ethyl alcohol by fermentation। in presence of Zymase enzyme। glucose or fructose is converted to ethyl alcohol by fermentation in the presence of Zymase enzyme। glucose or fructose is converted to ethyl alcohol by fermentation in the presence of Zymase enzyme। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बाय फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द
favor of cyclic structure. Glucose does not give NaHSO3 test. Glucose does not give NaHSO3 test. Glucose does not give NaHSO3 test. Okay, H प्लस माइनस SO3 Na, ये यहाँ पे OH और यहाँ पे SO3 Na, ये तब होता है जब रहता, बट ये टेस्ट ग्लूकोज डज नॉट गिव NaHSO3 टेस्ट, मतलब ये साइक्लिक में एग्जिस्ट कर रहा. हाँ, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्चिप्स टेस्ट. ग्लूकोज डज नॉट गिव स्चिप्स टेस्ट. ओके. पेंटाएसिटेट does not react with pentacetate does not react with NH2OH. ठीक है. अब देखते हैं साइकिल के स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ये यहाँ पे प्लस माइनस में जुटेगा, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में OH है, तो ये D है, ठीक है, कैपिटल D, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन है इसका. ये लास्ट वाला जो है प्लस माइनस में ये टूटा, और लास्ट कायरल कार्बन जो है 1 2 3 4 5, लास्ट कायरल कार्बन ये अटैच हुआ कार्बन से, ठीक है. ये कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड यहाँ कार्बन से बना और H उसके पास चला गया, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया. 1 2 3 4 5 6 छठा कार्बन ये चेन से बाहर है, रिंग से बाहर है, ठीक है. और ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग है, जिसमें से 5 कार्बन और एक बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये पायरान से रिंग से थोड़ा थोड़ा मैच करता है, पायरान रिंग के तरह है, पायरान रिंग की तरह है बिल्कुल. और यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे फर्स्ट कार्बन पे. और साइक्लिक में हम लोग देखते हैं तो बताते हैं एनोमर्स बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं इसे. ऑक्सीजन के बाद जो फर्स्ट कार्बन आ रहा है इसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन. और साइक्लिक में, हाँ, अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो फिर उसे इपीमर कहते हैं. हाँ, एपीमर कहते हैं नॉन साइक्लिक में. ये साइक्लिक में ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन, जस्ट बाद जो फर्स्ट कार्बन है उसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन. ओके. HOH थर्ड कार्बन पे OHH, फिर फोर्थ पे HOH, फिर फिफ्थ पे नीचे H ऊपर CH2OH. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट पे जो है एनोमेरिक कार्बन, ये जो पहला है एनोमेरिक कार्बन, और अब ये बन चुका है, इसे क्या कहते हैं, हॉवर्थ फार्मूला. अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, प्लस यहाँ पे हो गया डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो, यहाँ पे गया ग्लूकोज, यहाँ पे गया पायरेनोज, अल्फा डी यहाँ पे प्लस हो गया डेक्स्ट्रो डी स्मॉल डी, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है डेक्स्ट्रो स्मॉल डी, यहाँ पे गया ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोज पायरेनोज, पायरेनोज पायरान रिंग है, यहाँ पे पायरान रिंग है. ओज, यहाँ पे शुगर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है ओज, ठीक है. अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी प्लस ये हो गया डेक्स्ट्रो, ठीक है. अल्फा डी प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो को, हाँ बिल्कुल, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज. अब अगर OH ऊपर है और नीचे H है, ठीक है, एपीमेरिक कार्बन पहला कार्बन, ठीक है, फिर HOH OHH HOH H CH2OH, तो इसे कहेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज. ओके. देखते हैं म्यूटा रोटेशन. अब देखते हैं म्यूटा रोटेशन, इन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा, inversion of alpha and beta in acidic or basic medium is called muta rotation due to hemiacetal. Inversion of alpha and beta, inversion of alpha and beta in acidic or basic medium is known as muta rotation due to hemiacetal. इन्वर्जन ऑफ इंटरवर्जन, म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं, इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा, इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, is known as muta rotation, due to hemiacetal. Interconversion of alpha and beta in acidic or basic medium, is known as muta rotation due to hemiacetal.
Important points of glucose alpha and beta are anomers, C1 एनोमर और एपीमर और डायस्टेरियोमर्स. ठीक है, ये यहाँ पे एनोमर्स ओनली फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन चेक करते हैं हमेशा. एनोमर्स ओनली फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन चेक करते हैं हमेशा. ओनली फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर एनोमर्स हाँ, ओनली फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन चेक करते हैं हमेशा. ठीक है, अल्फा एंड बीटा एनंसियोमर C1 अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स C1 पे ये एनोमर्स है. ठीक है, और एपीमर्स और डायस्टेरियोमर्स. ओके, एनोमर्स आर ऑल्सो डायस्टेरियोमर्स. एनोमर्स are also diastereomers. All anomers are also diastereomers. बिल्कुल, all anomers are diastereomers. True, all diastereomers are anomers. False. L-glucose is the mirror image of D-glucose. 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 HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH. L-glucose जो है, L-glucose is the mirror image of D-glucose. L-glucose is the mirror image of D-glucose. L-glucose is the mirror image of D-glucose. ये हो गया D-glucose और यहाँ पे L-glucose. L-glucose is the mirror image of D-glucose. 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 यहाँ पे D-glucose है. L-glucose is the mirror image of D-glucose. अब यहाँ पे देखते हैं फ्रक्टोज में यहाँ पे कीटो रहता है. हाँ, और यहाँ पे फ्यूरान रिंग बनता है. ऐसे याद कर लो ना, F से फ्रक्टोज, F से फ्यूरान रिंग और फिर ग्लूकोज में पायरान रिंग. ठीक है, यहाँ पे फ्रक्टोज में फ्यूरान रिंग और यहाँ पे कीटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो. ये टोटा प्लस माइनस में. ठीक है, यहाँ पे क्या है, OHH, HOH, HOH और यहाँ पे CH2OH. और ये है बॉन्ड, ये O यहाँ पे इससे अटैच हो गया. ठीक है, यहाँ पे टोटल कायरल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज. तीन है. हाँ, तीन ही है अभी और फिर बाद में एक और हो गया जब इससे अटैच हुआ तो. ठीक है, तब इसका फॉर्मूला बना OH और यहाँ पे नीचे में CH2OH. ठीक है, और यहाँ पे OHH, HOH और नीचे H, ऊपर में CH2OH. ठीक है, ये फ्रक्टोज और ये फ्रक्टोज का है. ऊपर में OH और नीचे में CH2OH है, तो ये हो गया बीटा. और पहला कार्बन यहाँ पे रिंग से बाहर है. CH2OH. ठीक है, OH CH2OH, फिर यहाँ पे OHH, फिर HOH, फोर्थ पे HOH, फिफ्थ पे नीचे में H हो गया, ऊपर में CH2OH. बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज. बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज और फिर यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे नीचे में OH, HOH, HCS2OH. यहाँ पे नीचे में OH आ गया, तो ये हो गया अल्फा डी ये हो गया माइनस हो गया लीवर. ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरानोज
Important point of fructose. Important points of fructose. Important point of fructose. Important point of fructose. Alpha and beta are called anomeric anomers. Alpha and beta are called anomers. हाँ C2 carbon पे. Anomers are also diastereomers. हाँ all anomers are diastereomers. True. All diastereomers are anomers. नहीं false. Epimers किसे कहते हैं? Compound in which a different configuration is present only at any one carbon. Compounds in which different configuration is present only at any one carbon. Compounds in which different configuration is present only is present only at one carbon. Compounds in which different configuration present only at one carbon इसे कहते हैं एपीमर्स. ठीक है, तो हो गया ग्लूकोज और यहाँ पे हो गया मनोज. C2 कार्बन पे एपीमर्स. ठीक है. एनोमर्स same compound have two different chain structure. Same compound have two different ring structure. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा कहते हैं इसे. स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ये डाइसैकेराइड है. ठीक है. C12H22O11. ये क्या सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, या फिर ये बोल दो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है सुक्रोज. कैसे बना? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज. ठीक है. यहाँ पे बना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट एट C1 and C2. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is present at C1 and C2. Glycosidic linkage is present at C1 and C2. माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया माल्टोज. ठीक है. यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट एट glucosidic linkage is present at C1 and C4. Glycosidic linkage is present at C1 and C4. और वहाँ पे भी है वहाँ पे था C1 and C2. सुक्रोज बन रहा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 and C2. और फिर ग्लूकोज सुक्रोज हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. फिर माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, और फिर यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 and C4. ठीक है. लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज. लैक्टोज किससे बना? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज. लैक्टोज किससे बना? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज. लैक्टोज किससे बना है? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज. बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज. लैक्टोज किससे बना? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज. बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज. Glycosidic linkage at C1 and C4. 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 ठीक है. लैक्टोज में हो गया ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज. बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च हैज़ टू कंपोनेंट, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन. अमाइलोज ये सिर्फ है लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन यहाँ पे ब्रांच्ड होता है. 6th पोजीशन पे यहाँ पे ब्रांच्ड होता है. ओके. सुक्रोज हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज. ठीक है. सुक्रोज हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है. फिर उसके बाद सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया,
फ्रक्टोज सॉरी लैक्टोज 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 प्लस ग्लूकोज। ओके अब देखते हैं ठीक है, ये हम लोग अब देख रहे हैं स्टार्च का। स्टार्च में दो था, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज ये लीनियर पॉलीमर है, अमाइलोज लीनियर पॉलीमर 15 to 20% स्टार्च, 15 to 20% स्टार्च। लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है 15 to 20%। अमाइलोज ये लीनियर पॉलीमर है ठीक है, 15 to 20% स्टार्च में कंट्रीब्यूट करता है 15 to 20%। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4। ठीक है, ये अमाइलोज हो गया। अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। अमाइलोपैक्टिन अमाइलोपैक्टिन ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। अमाइलोपैक्टिन ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, 80 to 85% स्टार्च है। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4 एंड ब्रांच्ड एट C6। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4 एंड ब्रांच एट C6। ओके, अब देखते हैं अमाइलोज, ये लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। ओके, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा लिंक आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4। ठीक है, एच ओ एच हाँ ठीक है, फिर अमाइलोपैक्टिन में यहाँ पे ब्रांच, वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज और फिर यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा लिंक आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4। ठीक है, और अमाइलोपैक्टिन में ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक लिंक्स अल्फा लिंक आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4 एंड ब्रांच एट C6। ओके, अब देखते हैं सेलुलोज। हाँ, सेलुलोज प्रेजेंट इन पेपर कॉटन, सेलुलोज प्रेजेंट इन पेपर कॉटन। ठीक है, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीटा लिंक्स आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4। हाँ, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है ये। ठीक है, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, सेलुलोज क्या है, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीटा लिंक्स आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4। ओके, तो ग्लूकोज में देख लिए, सॉरी सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज C1 एंड C2 पे। ठीक है, माल्टोज अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज C1 एंड C4। ठीक है, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज C1 एंड C4 पे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, स्टार्च बना है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से। ओके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4 और फिर यहाँ पे अमाइलोपैक्टिन में यहाँ पे ब्रांच रहता है C6 पे। ठीक है, सेलुलोज ये बीटा डी ग्लूकोज से बना है मिलकर, C1 एंड C4 पे यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ओके, अब देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पे ऊपर में CHO है, HOH CS2OH, ये हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड भी से कहते हैं, और ये हो गया एल्डोट्रायोज, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ये एल्डोट्रायोज है। ठीक है, फिर इसमें HOH और इधर OH सब जोड़े तो ये बना एल्डोटेट्रोज और ये जो HOH जोड़ रहा है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, एल्डोटेट्रोज। तो फिर यहाँ पे पहले लिखते हैं GET, तो यहाँ पे इराइथ्रो और थ्रियो बना, इधर HOH इराइथ्रो और इधर थ्रियो बना OHH। ठीक है, इराइथ्रो थ्रियो, जो कि एल्डोटेट्रोज। अब इसके बाद एल्डोपेंटोज में अब क्या आता है, रेखा अमिताभ का XY से लफड़ा, तो इराइथ्रो से यहाँ क्या बना, रेखा अमिताभ। राइबोज और एराबिनोज, इराइथ्रो से ये दोनों बना रेखा अमिताभ का XY से लफड़ा। राइबोज एराबिनोज, रेखा अमिताभ, रेखा का हो गया राइबोज, अमिताभ हो गया एराबिनोज। ठीक है, एराबिनोज रेखा अमिताभ, राइबोज एराबिनोज रेखा अमिताभ का XY से लफड़ा। जाइलोज और लाइक्सोज, जाइलोज और यहाँ पे हो गया लाइक्सोज। ठीक है, जाइलोज और लाइक्सोज। ओके, जाइलोज और लाइक्सोज रेखा अमिताभ का लफड़ा। आर से हो गया राइबोज एराबिनोज और यहाँ पे XY से हो गया जाइलोज और यहाँ पे हो गया लायोज, लफड़ा।
लाइक्सोस, लाइक्सोस, ठीक है। यहाँ पे आग में गिरगिट, आग में गिरगिट, डबल ए जी, आग, एम से हो गया में गिरगिट, GIGT, गिरगिट, ठीक है, आग में गिरगिट। ये था एल्डोपेंटोस हो गया। अब एल्डोहेक्सोस, 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 आग में गिरगिट, आग में गिरगिट, डबल ए जी, ठीक है, आग, एम हो गया, ठीक है, फिर GIGT, आग, ए हो गया। एलोज, एलोज, एल्ट्रोज, एलोज, एल्ट्रोज, एलोज, एल्ट्रोज, एलोज, एल्ट्रोज, ठीक है, फिर ग्लूकोज मनोज, ग्लूकोज मनोज, ग्लूकोज मनोज, फिर ग्लूकोज आयोडोज, ग्लूकोज आयोडोज, ग्लूकोज आयोडोज, ग्लूकोज आयोडोज, फिर ग्लैक्टोज एल्डोहेक्सोज, सॉरी टैलोज, ग्लूकोज टैलोज, ग्लूकोज, सॉरी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज टैलोज, ग्लैक्टोज टैलोज, ग्लैक्टोज टैलोज, एल्डोट्रायोज हो गया, एल्डोटेट्रोज हो गया, ठीक है, GET। उसके बाद एल्डोपेंटोज, रेखा अमिताभ का XY से लफड़ा, एक हो गया। राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज और लायोज, ठीक है, फिर उसके बाद आग में गिरगिट, ये हो गया एल्डोहेक्सोज, ठीक है, एलोज, एल्ट्रोज, फिर ग्लूकोज मनोज, फिर ग्लूकोज आयोडोज, फिर ग्लैक्टोज और टैलोज, ओके, ठीक है। अब देखते हैं अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ COH एंड NH2 ग्रुप। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, यहाँ पे COH के जस्ट अल्फा कार्बन पे वहाँ पे NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे NH2 है, COH के कंपैरिजन में यहाँ पे बीटा पोजीशन पे NH2 है, तो इसे कहेंगे ऑल अमाइनो एसिड, अरे सॉरी अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं जब COH के कंपैरिजन में अल्फा पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है, तो ये हो गया अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और फिर बीटा अमाइनो एसिड्स, ये हो गया बीटा पोजीशन पे जब NH2 है। गामा अमाइनो एसिड्स जब गामा पोजीशन पे NH2 है। फिर डेल्टा अमाइनो एसिड्स, ये डेल्टा पोजीशन पे है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स इज द मोनोमर ऑफ अ प्रोटीन। ऑल अमाइनो एसिड्स बिलोंग टू L family, all amino acids belong to L family, L मतलब NH2 ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, COH नीचे R के इधर H और इधर NH2, ठीक है। देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स, देयर आर 23 natural occurring alpha amino acids, there are 23 natural occurring alpha amino acids, there are 23 natural occurring alpha amino acids. Glycine, glycine is only optically inactive, glycine is only optically inactive, क्योंकि यहाँ पे 2 H आ जाता है ना C के पास, इसलिए। अब देखते हैं अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन R, हाँ यहाँ पे R, CH, COH और यहाँ पे NH2। इफ़ R contains COH then acidic amino acid, if R contains NH2 then basic amino acids, if R neither contains COH nor NH2 तो ये हो गया न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड्स, ओके। अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट, अल्फा अमाइनो एसिड गेट TYR, टायरोसिन CH2PHOH, टायरोसिन CH2PHOH, ठीक है। फिर सेरीन CH2OH, सेरीन CH2OH, ग्लाइसिन में एक H आ गया सिर्फ, ठीक है। एलानीन, एलानीन ME, एलानीन ME, एलानीन में यहाँ पे ME सिर्फ है, ठीक है। फिनाइल एलानीन CH2PH, फिनाइल एलानीन CH2PH, फिनाइल एलानीन CH2PH, वैलिन CHMe2, CHMe2, वैलिन CHMe2, वैलिन CH2CHMe2, CH2CHMe2, ये हो गया ल्यूसीन, ल्यूसीन CH2CHMe2, ल्यूसीन CHMeET, CHMeET, ये हो गया आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन हो गया CHMeET, आइसोल्यूसिन।
हाँ CH2 चार बार और यहाँ पे NH2, ये हो गया लाइसिन। CH2 चार बार, फिर यहाँ पे NH2, ये हो गया लाइसिन। ओके, CH2COOH, ये हो गया एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, CH2COOH एस्पार्टिक एसिड। CH2CH2COOH, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। CH2CH2COOH, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। CH2 होल 3, CH2 होल 3 NH, C डबल बॉन्ड NH और इधर NH2, ये हो गया आर्जिनिन, आर्जिनिन। ओके, ये हो गया आर्जिनिन। CH2 होल 3, CH2 होल 3 NH, C डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, ये बेसिक बेसिक तो फिर यहाँ पे देखते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों बेसिक था, ठीक है। और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिडिक है। ओके, तेरे शहर, तेरे शहर ग्वाला, तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान LAGN। ग्वानाइलिडीन, सॉरी ग्वानाइडीन ग्रुप NH2 और इधर NH और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। मोस्ट बेसिक ग्रुप, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन एक है वो। इन दोनों का लोन पेयर तो रेजोनेंस में, बट उसका लोन पेयर नहीं है रेजोनेंस में। ग्वानाइडीन। Total number of amino acids contain iso group CH2Me 2. Total number of amino acids contain benzene ring 2. टायरोसिन और वो फिनाइल एलानिन भी तो CH2PH हो गया फिनाइल एलानिन और टायरोसिन CH2PHOH। ज्विटर आयन बाइपोलर आयन, ज्विटर आयन बाइपोलर आयन RCH NH2COH, ठीक है। ज्विटर आयन में यहाँ पे RCH NH3+ और यहाँ पे CO-। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है। इसेंशियल अमाइनो एसिड VIP हॉल में TT, VIP हॉल में TT। इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है VIP हॉल में TT, VIP हॉल में TT। वैलिन आइसोल्यूसिन फिनाइल एलानिन, विनाइल सॉरी वैलिन, वैलिन आइसोल्यूसिन फिनाइल एलानिन, वैलिन आइसोल्यूसिन फिनाइल एलानिन। हॉल हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन ल्यूसिन लाइसिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन आर्जिनिन ल्यूसिन लाइसिन। फिर ठीक है एमी, ये हो गया मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। एमी हो गया मिथ्योनिन, एमी हो गया मिथ्योनिन, ठीक है। TT थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, TT थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान। VIP हॉल में TT, VIP वैलिन आइसोल्यूसिन फिनाइल एलानिन, वैलिन आइसोल्यूसिन फिनाइल एलानिन VIP, ठीक है। हॉल हिस्टिडीन आर्जिनिन ल्यूसिन लाइसिन, हिस्टिडीन आर्जिनिन ल्यूसिन लाइसिन, हिस्टिडीन आर्जिनिन ल्यूसिन लाइसिन, ठीक है। हॉल हो गया, ठीक है। एमी मिथ्योनिन, एमी हो गया मिथ्योनिन। फिर TT थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान, ठीक है। VIP हॉल में TT वैलिन आइसोल्यूसिन VIP फिनाइल एलानिन, ठीक है। VIP हॉल HALL हिस्टिडीन आर्जिनिन ल्यूसिन लाइसिन, ठीक है। फिर एमी मिथ्योनिन TT थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान, ये सब है इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, अब देखते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन अल्फा अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। Depending upon the pH of solution, depending upon the pH of solution, alpha amino acid exist in 3 different form. Anionic, anionic RCH NH2CO minus, RCH NH2COH। हाँ, जब pH, जब मान लो जब pH इंक्रीज करें, मतलब OH माइनस ज़्यादा हो रहा है तो OH माइनस बेसिक क्या करेगा, ये H+ ले लेगा। हाँ, तो यहाँ पे CO माइनस हो जाएगा। और जब H+ बढ़ा रहे हैं, मतलब जब pH कम कर रहे हैं तो H+ ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको दे दो तो NH3+ हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर जब आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे pH कम हो रहा है, हाँ, क्योंकि H+ बढ़ रहा है। तो फिर ये हो गया एनाइनिक। जब यहाँ पे हाई pH है, pH ज़्यादा मतलब OH माइनस ज़्यादा है, तो यहाँ से H+ लेगा तो यहाँ पे CO माइनस हो गया, तो ये एनाइनिक फॉर्म में हाई pH पे, ठीक है, क्योंकि अभी OH माइनस ज़्यादा है। फिर बीच में इंटरमीडिएट pH में यहाँ पे ज्यूटर आयन बन गया RCH NH3+ CO माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है ज्यूटर आयन। अब यहाँ पे फिर H+ और बढ़ाए, H+ और बढ़ाए तो यहाँ हो गया RCH NH3+ और यहाँ पे COH। ओके, which will form which form will exist at
high pH of alanine, which form will exist in high pH of alanine? हाई पी एच, जब पी एच ज़्यादा हो मतलब ओ एच है, ओ सॉरी हाँ मतलब सही है, ओ एच माइनस है वहाँ पे, तो वो ऐसे लेगा सी ओ माइनस हो जाएगा वहाँ पे एनाइनिक फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे कैटाइनिक फॉर्म, लो पी एच में कैटाइनिक फॉर्म, ठीक है। देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द पॉइंट where no net migration of ions takes place, the point where no net migration of ions takes place, isoelectric point, isoelectric point, isoelectric point, isoelectric point, isoelectric point, the point where no net migration of ions takes place. The net, sorry, isoelectric point, isoelectric point, the point where no net migration of ions takes place. The point where no net migration of ions takes place. The point where no net migration of ions takes place. Isoelectric point, isoelectric point, the point where no net migration of isoelectric point, the point where no net migration of ions takes place, ठीक है, the point where no net migration of ions takes place, और pI or pH of a solution where jitter ion exist. Okay, calculation of a pH at isoelectric point, calculation of pH at isoelectric point. Case 1 for neutral amino acid, for neutral amino acid RCHNS2 COH, ठीक है, pKa1 pKa2 इसका है ये यहाँ पे न्यूट्रल पीएच है तो फिर यहाँ पे पी आई इक्वल्स टू पी के ए वन प्लस पी के ए टू अपॉन टू, ठीक है। केस 2 फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड, अगर एसिडिक है तो यहाँ पे पी के ए थ्री होगा, तो यहाँ पे पी आई इक्वल्स टू पी के ए थ्री प्लस एसिडिक है तो यहाँ पे एसिड वाला लेंगे पी के ए टू अपॉन टू। अब देखते हैं फॉर केस 3 फॉर बेसिक अमाइनो एसिड, फॉर बेसिक अमाइनो एसिड, तो फिर बेसिक में आर पे यहाँ पे एन एस थ्री है तो यहाँ पे क्या पी के ए थ्री, ठीक है, तो फिर पी आई इक्वल्स टू पी के ए थ्री प्लस पी के ए वन, वो एन एच टू वाला लिए हैं, ठीक है, अपॉन टू। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, स्टिकर सिंथेसिस, ये डबल बॉन्ड है, ये टूटा माइनस प्लस में, ठीक है, NH4 प्लस सी एन माइनस, यहाँ पे ओ एन एस थ्री और यहाँ पे सी एन इससे अटैच हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से पानी निकला S2, तो ये हो गया सी सिंगल बॉन्ड NH2 और इधर हो गया सी एन, ठीक है, फिर यहाँ पे S3O प्लस डाले, S3O प्लस डाले तो फिर यहाँ पे C, यहाँ पे क्या NH2 और यहाँ पे COH। The properties of amino acid, most natural occurring amino acids belong to L family. Okay, glycine is the only optically inactive क्योंकि यहाँ पे एक आयरल है, लेफ्ट साइड पे NH2 था तो इसलिए कहा गया ये L फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, थर्ड पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बाइपोलर है इसलिए। वाटर सॉल्युबल है, हाँ आयनिक फॉर्म में इसलिए वाटर सॉल्युबल है। बिहेव्स लाइक सॉल्ट, बिल्कुल। अल्फा अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अल्फा अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। देखते हैं डाईपेप्टाइड है अगर तो फिर यहाँ पे 2 अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलता है और पानी निकला तो ये बन गया डाईपेप्टाइड, बिल्कुल CH3CHNS2COH, फिर यहाँ से H2 निकला, यहाँ पे NHCH2COH, तो यहाँ पे डाईपेप्टाइड बन जाता है CONH। ऑल अमाइड लिंक्स आर पेप्टाइड लिंक, all amide links are peptide link, all amide links are peptide link नहीं, all peptide links are amide link, हाँ बिल्कुल। ट्राईपेप्टाइड यहाँ पे जैसे वैलिन, आइसोल्यूसिन और एलानिन ये तीनों मिला है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे CONH और इधर CONS, ये हो गया पेप्टाइड लिंकेज। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। अब देखते हैं प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, प्रोटीन क्या है पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस ये क्या कोलेजन और इधर क्या ग्लोबुलर,
ग्लोब्यूलर हो गया, मायोग्लोबिन। और यहाँ पे फाइब्रस कोलेजन, फाइबर, हाँ फाइब्रस में हो गया कोलेजन। लॉन्ग थिन, long thin lie side by side to form a fiber. Long thin lie side by side to form fiber. ठीक है. Example, collagen in skin and bone, collagen in skin and bone. Keratin present in hair, wool, silk. Keratin present in hair, keratin present in hair, wool, silk. Keratin present in hair, wool, silk. Collagen in skin and bone, collagen in skin and bone. ठीक है. Keratin present in hair, wool or silk, keratin present in hair, wool or silk. ठीक है. Collagen in skin and bone, collagen in skin and bone. ठीक है. Keratin hair, wool, silk में. ठीक है. And myosin muscles present in muscles. ठीक है. Soluble in water, ये insoluble है. Solubility in water, ये insoluble है. ठीक है. Role structural, collagen in bone and cartilage, collagen in bone and cartilage. Keratin is fingernail and hair, keratin in fingernails and hair. ठीक है. Globular myoglobin, folds of a spherical 3D shape, folds into a spherical 3D shape. Globular myoglobin हो गया folds into a spherical 3D shape. Folds into a spherical 3D shape, folds into a spherical 3D shape. ठीक है. Globular myoglobin. ठीक है. Example, hemoglobin, insulin, enzyme, albumin. ठीक है. Solubility in water, soluble है ये. Hemoglobin, insulin, enzyme, albumin. Hemoglobin, insulin, enzymes, albumin. Role, metabolic role इसका, enzymes in all organism, plasma protein, antibiotic in mammals. Enzymes in all organism, plasma protein, antibiotic in mammals. रूल के इसका, enzymatic in all organism, enzymes in all organism. ठीक है. Plasma protein, antibiotic in mammals. Okay. अब देखते हैं denaturation of protein found in biological system with a unique 3-dimensional structure and biological activity is called a native protein. Protein found in biological system, with a unique 3-dimensional structure and biological activity is called a native protein. Protein found in biological system, ठीक है, with a unique 3-dimensional structure and biological activity is called a native protein. When a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bond is disturbed. The hydrogen bond are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. ठीक है. Third point, during denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed but primary structures remains intact. Fourth example, coagulation of egg white on boiling, curdling of milk which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in milk. Okay.
इन दोनों का एग्जाम्पल्स एक बार फिर से देखते हैं। तो फाइब्रस में हो गया कोलेजन फाइबर, ठीक है, कोलेजन फाइबर, कैराटीन और मायोसिन, ओके। और यहाँ पे ग्लोबुलर में, हीमोग्लोबिन में, यहाँ पे हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंजाइम, एल्ब्यूमिन, ओके। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ a protein are stabilized by hydrogen bond, ओके। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए। एन नंबर ऑफ मोनोमर मिलके बनता है जैसे पॉलीमर, वैसे ही एन नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड मिलके बनता है प्रोटीन। एन नंबर ऑफ मोनो मिलके बनता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है। Chemical composition of nucleic acid, complete hydrolysis of DNA or RNA yields a pentose sugar, phosphoric acids and nitrogen containing heterocyclic compounds called bases. In DNA molecule, the sugar is beta D to deoxyribose, whereas in RNA it is beta D ribose. यहाँ पे राइबोस सुगर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल और एक ऑक्सीजन। बट रिंग में 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन। और ये बीटा वाला है तो यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है, बीटा डी और 2 डीऑक्सीराइबोज सेकेंड पोजीशन पे, ऑक्सीजन नहीं है और आरएनए में है, डीएनए में नहीं है, ठीक है। बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए में एडेनिन ए, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन है डीएनए में, ठीक है। और फिर आरएनए में यहाँ पे यूरेसिल है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है आरएनए में, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ से एक H प्लस हटता है तो फिर ये H3PO4 से बना H2PO4 माइनस, फिर एक H प्लस और हटा तो बना HPO4 2 माइनस, एक H प्लस और हटा तो फिर PO4 3 माइनस, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और फिर ये बन गया ट्राइफॉस्फेट, ओके। यहाँ पे देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। ये शुगर है, पेंटोज शुगर है, वन पोजीशन पे यहाँ पे बेस और फिर यहाँ पे 5th पोजीशन पे फॉस्फेट आके जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया। और फिर जब डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है, जब फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड बना तो फिर यहाँ पे ये दो, यहाँ पे 3 कार्बन से यहाँ पे 5 कार्बन के बीच में फॉस्फेट ये जुड़ता है तो ये बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ये बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेस है, फॉस्फेट इसका बैकबोन है और फिर बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, यस। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन और बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, ठीक है। देखते हैं विटामिन्स आर नेसेसरी फूड फैक्टर रिक्वायर्ड इन डाइट। दे आर क्लासिफाइड एज फैट सॉल्युबल A, D, E and K and water soluble B group and C. Deficiency of vitamins leads to many disease. ये देखते हैं कीड़ा के EDA। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। विटामिन A को रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन A को रेटिनॉल भी कहते हैं। KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। विटामिन A को रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन A, रेटिनॉल, ठीक है। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स B1 को थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटोथैनिक एसिड, B5 हो गया पेंटोथैनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलेट, B12 कोबालामीन और यहाँ पे C हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन B12 कोबालामीन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, और भी कुछ स्टोरिंग कर सकते हैं बट विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये एक ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हम लोग बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन
ये B1 हो गया थायमिन, B1 हो गया थायमिन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, नाइसिन, B5 पेंटोथैनिक एसिड, पेंटोथैनिक एसिड, पेंटोथैनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B6 हो गया, B6 हो गया पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट, B9 फोलेट, B9 फोलेट, B12 कोबालामीन। अब यहाँ देखते हैं सोर्स और इधर का डेफिशिएंसी डिजीज, सोर्स और इधर का डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, कैरोट, बटर एंड मिल्क, ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ीरोप्थेल्मिया, ज़ीरोप्थेल्मिया, विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होता है ज़ीरोप्थेल्मिया। हियरिंग ऑफ सॉरी हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, और फिर नाइट ब्लाइंडनेस, और फिर नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ज़ीरोप्थेल्मिया, 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 हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। यहाँ हो गया फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, कैरोट, कैरोट, बटर एंड मिल्क। ओके, विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, ईस्ट मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स, थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, इसके क्या होता है B1 से बेरी बेरी, B1 की डिफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, ईस्ट मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ईस्ट मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। विटामिन B2 इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, मिल्क, एग वाइट, लिवर किडनी, मिल्क, एग वाइट, मिल्क, एग वाइट, लिवर किडनी, लिवर किडनी, इसकी कमी से होता चिलोसिस, 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 फिशरिंग एट कॉर्निया ऑफ माउथ, फिशरिंग, चिलोसिस, चिलोसिस, फिशरिंग एट कॉर्निया, अरे यार कॉर्निया यहाँ कॉर्नर है, फिशरिंग at corner of mouth and lips, digestive disorder and burning sensation of skin, and burning sensation of skin, milk, egg white, liver kidney, milk, egg white, liver kidney, क्या विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ईस्ट मिल्क, एग यॉल्क, सीरियल्स एंड ग्राम्स, कन्वल्सन, 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 विटामिन B6, विटामिन B12 ये रहता मीट, फिश, एग एंड कर्ड, मीट, फिश, एग एंड कर्ड, विटामिन B12 कर्ड में, हाँ कर्ड में रहता। पर्नीसियस एनीमिया, RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, मीट, फिश, एग एंड कर्ड, विटामिन B12 कर्ड में। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, स्कर्वी, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, हेयर फॉल भी तो, हाँ ठीक है आगे बढ़ो। विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग यॉल्क, इस विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता रिकेट्स, bone deformities in children and osteomalacia, soft bone and joint pain in adults, ठीक है। हम देखते हैं विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल, vegetable oils like wheat, vegetable oils like wheat gram oil, sunflower oil, etc. Vitamin E, vegetable oil like wheat gram oil, sunflower oil, etc. Increased fragility of RBC and muscular weakness. इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? increased fragility of RBC and fragility ये टूट जाता, रप्चर हो जाता, fragility of
fragility of RBC and muscular weakness. Vitamin K, green leafy vegetables increased blood clotting time. Green leafy vegetables increased, अच्छा इसकी डिफिशियंसी से, हाँ विटामिन के किस में रहता, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विटामिन के किस में रहता, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ओके, विटामिन ए हो गया, फिश लिवर ऑयल कैरोट बटर एंड मिल्क, ठीक है। इसकी कमी से होता, विटामिन ए की कमी से होता ज़ीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ज़ीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। फिश लिवर ऑयल कैरोट बटर एंड मिल्क, ठीक है। विटामिन B1 थायमीन ईस्ट मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, इसकी कमी से होता बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है। विटामिन B1 थायमीन विटामिन B1 ईस्ट मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ठीक है, इसकी कमी से बेरी विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस फिशरिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ, चिलोसिस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। मिल्क एग वाइट लिवर किडनी की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन ईस्ट मिल्क एग यॉल्क सीरियल्स एंड ग्राम। विटामिन B6 की कमी से होता कन्वुल्सन। विटामिन B12 किसमें, फिश मीट फिश एग एंड कर्ड, इसकी कमी से होता है यहाँ पे पर्नीसियस एनीमिया आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्कर्वी, इसकी विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी ब्रीडिंग गम्स, ठीक है। विटामिन डी एक्सपोजर टू सनलाइट और फिश एंड एग यॉल्क, यहाँ पे होता रिकेट्स बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट, ठीक है। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल लाइक wheat gram oil sunflower oil etc increased fragility of RBC and muscular weakness, ठीक है। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। विटामिन के इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ओके। विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B12 पर्नीसियस एनीमिया, विटामिन B6 कन्वुल्सन, विटामिन B2 चिलोसिस और यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। विटामिन B1 बेरी विटामिन ए ज़ीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब देखते हैं एंजाइम्स catalyze the reaction in body enzymes, ये catalyst क्या काम करता है, catalyze the reaction in body, catalyze the reaction in body. A small quantity can do millions of the reaction, also known as biochemical catalyst, ठीक है। small quantity can do millions of the reactions. और यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस यहाँ पे एंजाइम्स मिला, ठीक है। ये की और यहाँ पे ये लॉग, ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। इससे बन रहा प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ठीक है। नेम सबस्ट्रेट और यहाँ पे प्रोडक्ट यूरिया सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एंजाइम क्या है यूरिएज, ये अमोनिया प्लस CO2, ठीक है। माल्टोज, यहाँ पे माल्टोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, ठीक है। सुक्रोज इन्वर्टेज डाले ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। स्टार्च अमाइलेज माल्टोज
अच्छा, फिर माल्ट स्टार्च में जब अमाइलेज डालते हैं, स्टार्च में जब अमाइलेज डालते हैं तो ये पहले माल्टोज में कन्वर्ट होता, माल्टोज में कन्वर्ट होता, फिर उसके बाद माल्टेज डालते हैं तो ये ग्लूकोज बनता। ओके। हाँ, स्टार्च में अमाइलेज डालते हैं, स्टार्च में अमाइलेज डालते हैं तो ये माल्टोज बनता है। स्टार्च में अमाइलेज डालते हैं, स्टार्च में अमाइलेज डालते हैं तो ये माल्टोज बनता है। सुक्रोज में पहले वही तो स्टार्च, क्योंकि स्टार्च बना हुआ है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से, ठीक है। तो फिर स्टार्च में पहले अमाइलेज डालते हैं तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद माल्टोज में जब माल्टेज डालते हैं तो ये ग्लूकोज बन जाता है। ओके, हाँ ठीक है। और प्रोटीन में ट्रिप्सिन डाले तो ये अमाइनो एसिड्स बन गया, और फिर एस्कॉर्बिक एसिड में, एस्कॉर्बिक एसिड ये सबस्ट्रेट है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज डाले, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज डाले तो ये बन गया डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन में ट्रिप्सिन डाले, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। स्टार्च में अमाइलेज डाले तो ये बना माल्टोज, ठीक है। और फिर उससे पहले सुक्रोज में डालते हैं इन्वर्टेज तो ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। और फिर माल्टोज में माल्टेज डाले तो ये बना ग्लूकोज, यूरिया में यूरियस डाले तो ये बना अमोनिया प्लस CO2। टेस्ट ऑफ बायोफिनॉल, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले इसमें है मॉलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल प्लस ETOH। अल्फा नेफ्थेनॉल ये दो बेंजीन है, ठीक है, और फिर यहाँ पे OH है। ओके, 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल, 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल प्लस ETOH प्लस H2SO4, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसमें डाले तो फिर पर्पल रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, पर्पल रिंग, पर्पल कलर में दिखता है, ठीक है, पर्पल रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। ओके, मॉलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल प्लस ETOH, H2SO4 इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाले तो फिर पर्पल रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। ओके, मोनोसेकेराइड अगर है तो ये फास्ट शो करता है, ठीक है, और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड तो फिर स्लो रिएक्शन देता। ओके, अब देखते हैं सेकेंड सेलिवेनॉफ टेस्ट फॉर कीटोज, सेलिवेनॉफ टेस्ट फॉर कीटोज। तो फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए डिटेक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते थे Br2H2O, ये भी यूज़ कर सकते हैं सेलिवेनॉफ टेस्ट भी, क्योंकि ये ग्लूकोज नहीं देता, क्योंकि ग्लूकोज के पास ये कीटोन ग्रुप नहीं है, और फ्रक्टोज देता है क्योंकि फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप है। ओके, सेलिवेनॉफ टेस्ट फॉर कीटोज, सेलिवेनॉफ टेस्ट फॉर कीटोज। रिएजेंट रिसोर्सिनॉल, यहाँ पे PHOH रिसोर्सिनॉल, अच्छा, ऑर्थो मेटा पे OH है, मेटाफिनॉल, रिसोर्सिनॉल रिएजेंट। दिस टेस्ट इज यूज टू परफॉर्म्ड व्हेन सैंपल गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। हाँ, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है बेनेडिक्ट और फेलिंग के लिए, एंड ऑल्सो टॉलरेंस के लिए भी। हाँ ठीक है। टेक Sullivan-Off reagent and add it in the sample. Boil for 2 minutes. Appearance of red to orange color indicate the presence of fructose. Appearance of red to orange color. Appearance of red to orange color indicate the presence of fructose. Okay. If no color appears in 2 minutes, continue boiling for 5 minutes. If no color appear in 2 minutes, then continue boiling for 5 minutes. If faint orange or no color appears, then it indicates the presence of glucose. अच्छा, if faint orange or no color appears, then it indicates the presence of glucose. और अगर कीटोस था तो 2 मिनट में रिएक्शन दे देगा रेड टू ऑरेंज कलर। ये था सैलिवेनॉफ टेस्ट। ऐसे याद रखो ना, सैलिवेनॉफ टेस्ट, साली से कौन सा कलर का, रेड कलर का ज़्यादा पहनती है साड़ी। हाँ, तो सैलिवेनॉफ टेस्ट में रेड कलर, और ये कीटोन के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं बारफोर टेस्ट फॉर मोनोसेकेराइड। CuSO4 प्लस CH3COH, CuSO4 प्लस CH3COH, यहाँ पे मोनोसेकेराइड
मोनोसेकेराइड के प्रेजेंस में क्या बना, रेड और ब्राउन पीपीटी, रेड और ब्राउन पीपीटी। ओके, बारफोर्ड टेस्ट फॉर मोनोसेकेराइड, बारफोर्ड टेस्ट फॉर मोनोसेकेराइड, CuSO4 प्लस CH3COOH। ठीक है, मोनोसेकेराइड के प्रेजेंस में ये रेड और ब्राउन पीपीटी, रेड और ब्राउन पीपीटी, कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिए, ठीक है, और मोनोसेकेराइड है। फॉर मोनोसेकेराइड CuSO4 प्लस CH3COH डाले मोनोसेकेराइड में, CuSO4 प्लस CH3COH, एंड देन ये रेड और ब्राउन पीपीटी दिया, Cu2 प्लस से Cu2O बन गया, रेड ब्राउन पीपीटी बनाया, ठीक है। बारफोर्ड टेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, एक्वस CuSO4 प्लस सोडियम सिट्रेट, हाँ, बेनेडिक्ट टेस्ट एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, COONA COH CH2CONA CH2CONA, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। कॉपर 2 प्लस से यहाँ पे Cu2O बना, यहाँ पे कॉपर +1 में ये पीपीटी बनेगा, रेड ब्राउन पीपीटी। ओके, ठीक है। लाइट ग्रीन, येलो, ब्रिक रेड, अमाउंट ऑफ शुगर, लाइट ग्रीन, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, ब्रिक रेड। अमाउंट ऑफ शुगर अगर ज़्यादा होगा तो फिर इसका कलर ब्रिक रेड हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड फॉर द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, अच्छा, ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर कितना है। टॉलरेंस टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, टॉलरेंस रिएजेंट AgNO3 प्लस NH4OH, AgNO3 प्लस NH4OH, यहाँ पे CHO से क्या बना, COO माइनस, Ag प्लस से Ag PPT बना, Ag प्लस से यहाँ पे Ag 0 में आ गया, PPT बना इसका टॉलरेंस टेस्ट में। टॉलरेंस टेस्ट में AgNO3 प्लस एक्वस अमोनियम सल्फेट। अब देखते हैं 6th है फेलिंग टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, एक्वस CuSO4 प्लस NaKT, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये फेलिंग में आता है, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, CONA CHOH COO, ये फेलिंग टेस्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रॉचल्स सॉल्ट। CHO से ये COO माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और Cu2 प्लस से Cu2O, अब यहाँ पे +1 में आ चुका है, रेड ब्राउन पीपीटी बना। ओके, ये कौन सा है, फेलिंग टेस्ट था, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और फिर बेनेडिक्ट में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, ठीक है। 7th है आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, यहाँ पे I2 के प्रेजेंस में ये ब्लू कलर का देता है, ब्लू कलर, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ आयोडीन, ओके। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, पहला बायूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, टेक प्रोटीन solution in a test tube, take protein solution in a test tube, add NaOH solution and 1 to 2 drops of CuSO4 solution. A violet color indicates the presence of protein. Burette test, take protein solution in a test tube, ठीक है, add NaOH solution and 1 to 2 drops of copper sulfate, ठीक है। A violet color indicates the presence of protein. Biurate test is for peptide bond in a molecule of a protein. Burette test is for peptide bond in a molecule of a protein. Burette test is for peptide bond in the molecule of a protein. Cu2 प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का है, NaOH इसमें डाले हैं तो ये बन गया CuOH होल टू ब्लू कलर। वायलेट ना,
वायलेट कलर यहाँ इंडिकेट्स कर रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ब्यूरेट टेस्ट में, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन दैट एक्सेस कॉपर सल्फेट इज नॉट एडिड, अदरवाइज देयर विल बी ब्लू कलर इंस्टेड ऑफ वायलेट कलर। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा डाल दिए तो ओके, तो इसे बस फ्यू ड्रॉप्स डालना है कॉपर सल्फेट का, देन वायलेट कलर हमें मिलेगा ब्यूरेट टेस्ट में ये प्रोटीन के लिए है, ठीक है। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट एड concentrated HNO3 to protein solution. A white PPT is formed, ठीक है। Boil the solution and the color changes to yellow. Boil the solution and the color changes to yellow. Okay, cool the test tube and add NaOH or ammonia solution to make it alkaline. The color changes to orange. Alkaline जब होता है तो फिर color changes to orange. Indicate the presence of protein. Xanthoprotic test is specific for protein containing aromatic amino acids. Specific for protein containing aromatic amino acids. The benzene ring in the amino acids is nitrated by heating with nitric acid and forms yellow nitro compounds which turn to orange color with alkali. Xanthoprotic test is specific for protein containing containing aromatic amino acids, ठीक है। The benzene ring in amino acids is nitrated by heating with nitric acid and yellow nitro compound which turn to orange color with alkali, ठीक है। ये वाइट रहता है, इसे बॉयल करते हैं, येलो कलर हो गया, फिर उसके बाद कूल्स एंड देन ऐड अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो फिर उसके बाद ये ऑरेंज कलर हो जाता है, पहले येलो फिर उसके बाद ऑरेंज कलर। निनहाइड्रीन टेस्ट पहला, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल प्रोटीन, दिस टेस्ट इज गिवन बाय all protein. Ninhydrin test, this test is given by all protein. यहाँ पे pH, यहाँ पे C double bond O, C double bond O, C double bond O, ये हो गया ninhydrin. This test is given by all protein. When protein is boiled with a dilute solution of ninhydrin, a violet color is produced. ninhydrin में भी violet color produced, और फिर ब्यूरेट में भी violet color प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ज़ेंथोफिल में पहले येलो, फिर उसके बाद जब उसको ठंडा करने के बाद अल्कलाइन डालते हैं तो फिर ऑरेंज कलर हो जाता है, ठीक है। मिलन्स में हो गया, यहाँ पे मरकरी से ये मिल लेता है, ऐसे याद रख लो। मिलन्स टेस्ट में यहाँ पे प्रोटीन सॉल्यूशन प्लस मिलन्स रिएजेंट डालते हैं तो ये पिंक कलर का अपीयर होता है, अपीयर पिंक कलर, ठीक है। मिलन्स रिएजेंट इज सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इन नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ नाइट्रस एसिड, HgNO3 या फिर HgNO2 ओके। तो यहाँ पे मिलन्स टेस्ट में ये यहाँ पे मरकरी रहता है मिलन्स रिएजेंट में, ठीक है, और ये पिंक कलर देता है, पिंक कलर। निनहाइड्रीन वायलेट कलर देता है, ठीक है, और फिर मिलन्स टेस्ट हो गया ये पिंक कलर, और ब्यूरेट टेस्ट वो भी वायलेट कलर देता है, प्रोटीन का है। और फिर ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट ये प्रोटीन के लिए होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मेनली। पहले ये येलो कलर देता है, हाँ, फिर उसके बाद जब ठंडा करके NaOH डालते हैं तो फिर ये ऑरेंज कलर दे देता है, ठीक है। अब उसके बाद आयोडीन रिएक्शन, प्रोटीन सॉल्यूशन प्लस आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन गिव्स येलो कलर। Iodine in potassium iodide gives yellow color. Protein solution plus iodine in potassium iodide solution gives yellow color. Okay. Test of alcohol. Practical organic chemistry. Test of alcohol. CAN. Saric ammonium nitrate test, NH4 whole 2 CeNO3 whole 6, यहाँ पे 3 ROH, तो इससे क्या बना 2 molecule of NH4 NO3 plus CeNO3 whole 4 ROH whole 3। पहला यहाँ पे देखते हैं CAN, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट,
सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, NH4 whole 2 NH4 whole 2 CeNO3 CeNO3 whole 6 CeNO3 whole 6, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, NH4 whole 2 NH4 whole 2 CeNO3 whole 6 NH4 whole 2 NH4 whole 2, ठीक है, NH4 whole 2 ब्रैकेट में CeNO3 whole 6, यहाँ पे 3 ROH 3 ROH, यहाँ पे से बना 2 NH4 NO3 2 NH4 NO3 प्लस CeNO3 whole 4 ROH whole 3, ठीक है, हो गया सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, NH4 whole 2 NH4 whole 2 CeNO3 whole 6, ठीक है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH, इससे क्या बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4 NO3 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4 NO3 प्लस CeNO3 whole 4 ROH whole 3, ठीक है। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, स्चिप्स टेस्ट, स्चिप्स रिएजेंट, द रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकलराइजिंग aqueous solution of para-rosanilene hydrochloride dye by adding sodium सल्फेट और बाईपासिंग SO2 गैस, ये एल्डिहाइड को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता। कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, ओके, एल्डिहाइड से लिखेंगे पिंक कलर में, एल्डिहाइड को कर देता स्चिप्स टेस्ट, ओके। हाँ, ये वाला पढ़े तो थे पहले भी, ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता था, उसी से तो पता चला था ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज, ओके। स्चिप्स टेस्ट तो क्या था, एल्डिहाइड के प्रेजेंस में ये पिंक कलर दे देता है, ओके। लिटमस टेस्ट ब्लू, लिटमस टेस्ट अगर एसिडिक है तो ये ब्लू से रेड कलर में कर देगा कन्वर्ट, ठीक है, और अगर बेस है तो फिर रेड से ब्लू, बेस है तो फिर रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता, और एसिड है तो ब्लू से रेड, ठीक है। RCO माइनस H प्लस, यहाँ पे NaCO3 के प्रेजेंस में यहाँ पे RCO Na प्लस CO2 रिलीज हुआ प्लस H2O, ब्रिस्क इफरवेरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे PHOH NaHCO3 के प्रेजेंस में यहाँ पे PHOH यहाँ पे NaHCO3 के प्रेजेंस में PHOH NaHCO3 के प्रेजेंस में नो रिएक्शन PHOH RCOH, RCOO माइनस H प्लस, RCOH है तो फिर ये NaHCO3 के प्रेजेंस में टेस्ट देता RCO Na प्लस CO2 प्लस H2O, ब्रिस्क इफरवेसेंस, ठीक है। यहाँ पे PHOH है अगर तो फिर यहाँ पे ये नहीं देता क्योंकि फिनॉल है ना, और ये बनता क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये सॉरी H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में और कार में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ था, ये मतलब सॉरी कार्बोनिक एसिड यहीं पे आ गया, कार में मोना को फिर खिलाई फिनॉल, हाँ तो ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता। PHOH NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, बट RCOH ये देता, ओके। सो दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।